सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए ला चुका हूँ हमारा जो ग्रुप 3 इलेक्टिव का पेपर होता है। फ्रॉम द ग्रुप 3 इलेक्टिव आई हैव मेड द वीडियोस ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आई हैव मेड द वीडियो ऑन फिजिकल एजुकेशन and I made the video on economics application. And now it's time for the most awaited video, one of the most awaited video, which is upon commercial application, because I've get about 8 to 9 comments about commercial applications. Please make a video on it, and I am here with a dedicated roadmap for commercial applications. तो commercial applications की वीडियो आ चुकी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। हाउ इज योर पेपर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स कम टू paper pattern. So paper pattern is such a way that there are two sections, A और B. पहले सेक्शंस में आपको मिलता है फर्स्ट क्वेश्चन 20 MCQs जो हर आपके ग्रुप 3 पेपर में सेम है. Then there is question number 2 and question number 3. Question number 2 is in such a way that there are 5 questions of 2 marks, that is 10, and in question number 3 also there are 5 questions of 2 marks, that is equals to 10. 20, 10, 10. It is 40. Section A is of 40 marks for you all. Now section B, there are question number 4, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8 and question number 9. Total 6 questions are there and you need to attempt 4 questions. So 4 questions you will be attempting. 15 4s are 60 and 60 40 100, that is 100 marks paper of theory आपका इधर से आएगा. अब हर क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स. 5 5 5 के पार्ट है तो 5 3 जा 15, यहाँ से 5 5 5 5 5 5 and so on. 3 parts from each question are there and you need to attempt any 4 from this. Any 4 करना है. One question will always be based on case study. एक क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी पे टोटली बेस रहेगा, उस क्वेश्चन पे बेस्ड. This is your paper pattern. Now let's come to the syllabus of commercial applications. तो आ जाते हैं और एक और चीज़ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 marks is for theory. This is similar for all the group 3 examinations, and 100 marks will be your practical or most probably internal, and then they will be added and their average will be taken out. For example, if you scored 80 in theory and you got assumingly 96 in practical, then there some will be done along with their average. It comes to 88. So you will score 88 marks in total out of 100, which will be printed in your final report card or mark sheet. 88, जबकि आपने 80 का स्कोर किया था, वो because of this internal or practical you gained more marks. Now let's now hop on to the syllabus. Syllabus कैसा है? सबसे पहले you're having about markets and marketing. पहला आपके बारे माने जो चीज़ है आपके पास वो है मार्केट्स और मार्केटिंग के बारे में. फर्स्ट इज यू कैन टेक अबाउट मार्केट एंड मार्केटिंग के बारे में है. दूसरा है आपके पास इसमें फाइनेंस के बारे में. मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंस कि हाउ द वर्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल थिंग्स आर डन. इसमें बैंकिंग के बारे में भी है, सेम एज देयर इन इकोनॉमिक एप्लीकेशन. थर्ड, इट इज योर अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पब्लिक रिलेशंस. थर्ड है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज योर पब्लिक रिलेशंस, पीआर जो नहीं बोलते हैं. Only 4 units are there and we will be discussing each of them in a very summarized way. So definition of markets and marketing with examples from consumer goods and consumer services. Consumer good वो होते हैं जो लोग सामान लेते हैं, जो हम लोगों के कंजम्पशन के बनाते हैं वो गुड्स, और सर्विसेज वो होती है जो इंटेंजिबल होती है. आपने पढ़ा है मार्केट और मार्केटिंग के बारे में. A clear understanding of markets wherever a buy or sell takes place in the market. Example of non-traditional markets such as catalogs, direct sales, telemarket. Definition, stages of marketing, types of market. मतलब मार्केटिंग के बारे में भी इसमें आपको पढ़ना है.
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, एक प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में फ़र्क क्या होता है? प्रोडक्ट इज़ अ tangible गुड जिसे हम छू सकते हैं, सर्विस इज इनटेंजिबल विच वी कैन नॉट टच। फीचर्स, उनके फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या फीचर्स हैं उनके ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर देयर। नाउ वी नीड टू स्टडी अबाउट 4 P's। 4 P's के अंदर आते हैं पहले प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये चार 4 P's को आपको समझना है। प्रोडक्ट, price, place, promotion. Elements of marketing mix, stages of products life cycle, pricing strategies such as skimming, penetration, parity, cost plus place, types of distribution channels, promotional strategies, concept advertising, direct selling and publicity. तो ये चार चीज़ें जब आपके पास होगी तभी आप मार्केट में बने रह पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। मीन्स यू नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ प्रोडक्ट, then you need to set its price, and then you need to find the place where you can sell it, and then you need to promote it, you need to उस प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। नाउ देयर इज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड प्रमोशन। डेफिनेशन पढ़ने की, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, किसी ब्रांड की प्रमोशन कैसे होती है। देन आफ्टर दिस यू नीड टू स्टडी about the features of the advertising and advantages and advantage पढ़नी है, disadvantages and types of advertising। एडवर्टाइजिंग के टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे मीडिया यूज फॉर एडवर्टाइजिंग, मीनिंग एग्जांपल्स, मीनिंग एंड एडवांटेज ऑफ सेल, प्रमोशन, डेफिनेशन ऑफ ब्रांड। कि एक हाउ वी कैन यूज मीडिया, मीन्स हाउ वी कैन यूज आवर न्यूज़ चैनल्स या अखबार वगैरह को हम कैसे एडवर्टाइजिंग में यूज़ कर सकते हैं। सेल प्रमोशन क्या होती है, कि सेल्स कर करके हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। एक ब्रांड क्या होता है, फिर ब्रांडिंग होती है, ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, हाउ टू ब्रिंग अबाउट ब्रांड प्रमोशन, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। अलग अलग चीज़ें क्या क्या होती हैं, सब आपको टर्म्स पढ़ना है। सेल्स एंड द सेलिंग प्रोसेस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। सेल्स कैसे करते हो सेल्समैन के लिए, आपके पास गुड क्वालिटीज़ क्या क्या होती है उसके लिए। एंड देन सेल्स एंड द सेलिंग प्रोसेस इंक्लूड द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, methods of selling, features of personal selling, advertising and personal selling, and qualities of a good salesman। सेल्स एंड सेल्समैन के बारे में पढ़ना है, मार्केटिंग के बारे में with respect to sales you need to study। So it's all about market and marketing in this part of unit। Then you have finance। finance is related to money and related to banking है ये। फाइनेंस आपको पढ़ना है, इसमें एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको GAAPs पढ़ने हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स है जो विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। गैप टू बी एक्सप्लेन, एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड ग्रोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये 5 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको पढ़ने हैं। इन पे आपके पास शॉर्ट नोट्स कैन डेफिनेटली बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज टाइप्स, दिस whole type of concept। Principle of financial accounting and reporting, receipt and payment account, income and expenditure sheet, balance sheet। Then you need to study about the balance sheet, अकाउंटिंग क्या होती है, पेमेंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर सब क्या होते हैं बारे में पढ़ना है। फिर वही है कि मीनिंग, फीचर्स, यूज ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डिफरेंसेस, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट, मीनिंग, फीचर्स एंड यूजेस, क्या क्या होता है आपकी बैलेंस शीट के बारे में। लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है इसमें। बैंकिंग में है टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो आपको इसमें यू नीड टू स्टडी रिलेटेड, यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट बैंकिंग एंड द वर्किंग ऑफ बैंक्स, आपको सब इसमें पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक मीन्स जिन्हें पब्लिक बैंक बोलते हो, जिन्हें आप गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हो, कमर्शियल की जो प्राइवेट बैंक होते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू, उनके बीच में डिफरेंस। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कितने बैंक अकाउंट होते हैं, एक होते हैं सेविंग्स, करंट, रिकरिंग, फिक्स्ड अकाउंट। दिस ऑल यू नीड टू स्टडी एंड द डिफरेंसेस, कि उनमें फ़र्क क्या है। रिक्वायरमेंट फॉर एन अकाउंट होल्डर फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कि मतलब एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। यू विल गेट अ पासबुक, अ चेक बुक, अ पे इन स्लिप बुक। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैंक अकाउंट, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेक। बैंक अकाउंट के होने के फ़ायदे क्या हैं, एंड चेक बुक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। व्हेन कैन अ बैंक रिफ्यूज़ पेमेंट ऑफ अ चेक, चेक का पेमेंट कब रिफ्यूज़ होता है, जब चेक बाउंस हो जाए, जनरली ये सब होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM के बारे में पढ़ना है, और चेक और बैंक ड्राफ्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में आपको पढ़ना है कि किसी चीज़ का कॉस्ट कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिहेवियर हमें पढ़ना है कॉस्ट का, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी फिक्स्ड, ये सब चीज़ें आपके पास सिलेबस में है। नाउ आफ्टर इट यू आर हैविंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि मान लीजिए एक HR होता है,
हर कंपनी में एचआर होता है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है। उसका काम क्या होता है, सारे मतलब रिलेट जितने भी आपके पोस्ट है, जितनी भी आपके इंसानों के द्वारा की जाने वाले वर्क्स है, एनी वर्क रिलेटेड टू, चाहे आपको कोई आपको मार्केटिंग हेड चाहिए, सेल्स हेड चाहिए, डिजिटल अकाउंटेंट चाहिए, इन सब के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मतलब यू नीड पीपल whom you can employ। तो उन्हीं को जो एम्प्लॉय करता है, उन्हीं को जो चूज करता है, दोज आर दी एच आर इन अ कंपनी। तो ह्यूमन रिसोर्स इन एन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स रोल एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में पढ़ना है। कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, मतलब किसी एम्प्लॉय को, किसी इंसान को एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉयबल बनाना है, मतलब यू नीड टू रिक्रूट हिम, उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग देनी है। तो उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन, द सोर्सेज इंटरनल एक्सटर्नल एंड मेथड्स स्टार्ट इन दैट रिक्रूटमेंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मीन्स मेथड्स पढ़ना है आपको कि कैसे यू यू कैन रिक्रूट, कैन सेलेक्ट एंड यू कैन ट्रेन देम। सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है कि हाउ यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट पर्सनल्स, मीनिंग मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, कितने टाइप के इंटरव्यू होते हैं, वीडियो इंटरव्यू होता है, इन पर्सन इंटरव्यू, मैनी मैनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर देयर। Meaning and importance of training, types of training and methods of training, meaning only, just meaning only, you have to study about the key. First of all, you need to study about the training, meaning of training, and the different methods of training, उनकी meaning ही पढ़नी है। On the job means coaching के अंदर, अंडर स्टडी, असिस्टेंट टू जॉब रोटेशन, कमिटी मेंबरशिप एंड अप्रेंटिसशिप, एंड ऑफ द जॉब इज इंटर्नशिप, वेस्टिब्यूल, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, लेक्चर, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये सब है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ मेथड्स ट्रेनिंग। एक है ऑन जॉब, यानी कि जॉब के साथ साथ आप कर सकते हो जो, और एक है ऑफ द जॉब, जो मतलब आपको जॉब के बाहर करना होगा ये सब चीज़ें, ट्रेनिंग। So these are the things, and now you are having the last unit, which is public relations। कि पब्लिक रिलेशंस को आपको कैसे समझना है। पब्लिक रिलेशंस का मतलब है कि हमारे सोसाइटी में कैसा हमारा रिलेशंस होने चाहिए एक दूसरे के साथ, या फिर सोसाइटी के साथ, या फिर जो गवर्नमेंट हमें जो चीज़ें दे रही है उसमें हमें कैसे उस पर वो करना है, कैसे उसे यूज़ करना है अच्छे से। सो व्हाट्स दैट्स अबाउट द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशंस। मीनिंग जानना है, नेचर उसका स्कोप जानना है। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस, एम्पैथी, पर्सुएशन, डायलॉग। मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द अबव। सो एलिमेंट्स है जो पब्लिक रिलेशंस में आते हैं, कि ह्यूमन रिलेशंस है जो हमारे बीच के रिश्ते हैं, फैमिली, टीचर या स्टूडेंट्स, एम्पैथी, पर्सुएशन, डायलॉग। हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड प्रेजेंट स्टेटस। पब्लिक रिलेशंस के बारे में आपको उसकी हिस्ट्री जानना है और प्रेजेंटली जानना है कि क्या हो रहा है। Ethics in public relations, growing role of ethics in business and public relations। ethics are such rules, मतलब सत्यनिष्ठा बोल सकते हो। ethics को मतलब ये कुछ rules होते हैं कि you need to maintain integrity everywhere wherever you go। and after it there are issues of environment। बाकी आपको environment में पढ़ना है, आपने पूरी geography में you have studied about this only। destruction of ecosystem due to industrialization, dwelling of business units, transport, tourism, mining, these are some of the things। and excessive consumption of minerals, raw materials and other non-renewable resources, कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, सो वन डे दे विल बी एक्सटिंक्ट एंड वी विल फेस many many problems। energy crisis are there, urban and rural sectors, renewable and non-renewable energy, this all you have studied in your geography। greenhouse effect, global warming, acid rain, this everything you have studied in your geography। एनर्जी क्राइसिस आर देयर, उसके बारे में डिटेल है कि ये सब उसके बारे में डिटेल बातें हैं। इन्वायरमेंट वैल्यूज एंड एथिक्स, व्हाट आर दी वैल्यूज, मतलब इन्वायरमेंट में वैल्यूज हैं, हाउ यू नीड टू फॉलो सम रूल्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड सम एथिक्स। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वैल्यू एजुकेशन, यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, क्लीन सराउंडिंग्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स थिंग, डेवलपिंग एन एथिकल इन्वायरमेंट consciousness। एग्जाम्पल मीन्स रिफ्यूजिंग द यूज ऑफ पॉली बैग्स, प्लास्टिक बैग्स यूज कम करना, स्टायरोफॉर्म जो आपका फोम होता है, और थर्माकोल मतलब कंटेनर्स एक्सेट्रा। एंड रीयूजिंग के अंदर आता है कि आपका वही पढ़ना है कि रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, विच स्टडीज इन ज्योग्राफी बेस्ड चैप्टर। प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर को यू कैन रीयूज, रिसाइकलिंग इन पेपर यू कैन रिसाइकल एंड यू कैन रिड्यूस, दिस विल रिड्यूस द वुड एंड सेफ्टीज। मतलब पहले आप रियूज करोगे प्लास्टिक्स एंड ग्लास कंटेनर्स, एंड यू विल सेंड योर ओल्ड पेपर्स टू रिसाइकलिंग, एंड दिस विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ wood and they will save trees।
कंज्यूमर एजुकेशन को कैसे पढ़ना है कि जो लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे हम अपने कस्टमर्स को कुछ बेच रहे हैं तो उनके बारे में एजुकेशन जानना। मीनिंग ऑफ कस्टमर एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग consumers of their rights, types of consumer rights क्या होते हैं, making correct choices while buying different items, फूड एडल्ट्रेशन एंड हार्मफुल इफेक्ट कि फूड में क्या क्या एडल्ट्रेट करते हैं जो हमारे FSSAI के अंदर आते हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट टू कस्टमर कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स होती है, देयर आल्सो यू कैन विजिट effects of pollution on environment, human and health, भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड Chernobyl, भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड Chernobyl के बारे में आपको पढ़ना है। दिस वाज इन योर 9th क्लास ज्योग्राफी। And last is community participation and contribution of public awareness program. Now there are some awareness program which are held. इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि community participation and public awareness programs for ecological restoration and conservation like चिपको आंदोलन या मूवमेंट, इसमें लोग एक साथ आते हैं और ये करते हैं। सो हेयर इज़ द फुल रोड मैप जो मैंने आपको दिया है कि हर चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिलेबस भी एक्सप्लेन कर दिया है। ओनली 4 यूनिट्स आर देयर। फर्स्ट इज अबाउट योर बिजनेस, market and marketing. Second is about finance related to money, related to banking. Third is about human resources related to recruitment, selection, training. And fourth is about your public relations related to environment, related to consumer code or consumerism and related to all these things. So these all things you need to study, ये आपको पढ़ना है, and definitely you can score best possible marks. What I will do, I will give you some MCQs, some questions, and if possible I will also give you some notes which will be very beneficial for you. So if you have any doubt, कोई भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। किसी और एग्जाम पे अगर आपको रोड मैप वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। I will definitely bring it for you. So till then, keep studying. Thank you very much.